dear student. In this video, we will talk about the remaining questions, which is question number 10. The question number 10 is equal lengths of magnesium ribbons are taken in a test tube A and test tube B. The hydrochloric acid is added to the test tube A, and while acetic acid is added to test tube B. In which test tube will fizzing occur more vigorously and why? So question number, say that there is a two test tube which is A and B. This A test tube and B test tube, and it adds acetic acid CH3COOH and it adds HCl. And it also contains magnesium ribbon. It is also contain magnesium ribbon. And question is, in which test tube will fizzing occur more vigorously? किस टेस्ट ट्यूब में से फिजिंग मैक्सिमम अमाउंट में होगा? तो it test tube will fizzing more vigorously. This test tube A, answer will be test tube A will fizzing more vigorously because test tube A contain strong acid. Test tube A contain HCl, which is strong acid, and that's why it release or it ionize or it completely ionized and donate H plus ion, whereas in case of acetic acid, it produce less hydrogen ion, so it is a weak acid, and it is a strong acid. So when we put the magnesium ribbon in the A test tube, it produces more vigorously because it contains HCl, and you know that HCl is a strong acid. When we put the magnesium ribbon into the test tube B, and the test tube B fill the acetic acid, and it produces less vigorously in comparison to test tube A. So this is the reason behind it. It contains strong acid, and whereas the test tube B contains weak acid, and this acid did not ionize completely and do not produce the hydrogen ion, and that's why it, after the dipping the magnesium ribbon, and it's less vigorously in nature.
The next question is question number 11. The fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it's turned into curd? Explain your answer. Student, we know that the milk have 6 pH means, and how do you think when it turn into curd? When it turn into curd by the action of bacteria, the pH of milk get turned, the pH of milk get turned into near about 5. So it is the acidic, the action of bacteria. When the milk change into curd by the action of bacteria, and the pH will slightly change into the from 6 pH to 5 pH is 5.6. So in this way the milk converted into the curd by the shift of pH, which is 5.6, and it is a more acidic in comparison to milk. In this way, the answer of this question, which question is fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as the turn into curd? Explain your answer. So our answer will be, when the pH of milk is 6 and it converted into curd by the action of bacteria, the pH of milk get turned into near about 5.6, and shift of pH is turned more acidic in comparison to milk. In this way, we have done the question number 11, and our question number 12, which is a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Milkman जो है अब बेकिंग सोडा मिक्स कर रहा है थोड़ा सा शॉर्ट अमाउंट में, एंड क्वेश्चन है व्हाई डज द शिफ्ट ऑफ पीएच ऑफ अ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, फ्रॉम 6 to slightly alkaline. So question of the, it is a question of 11, sorry, it is the answer of 11, but this also used in the question number 12. It is a, so milk pH have 6 and converted into curd by the action of bacteria, pH of milk get turned into near about 5.6. Shift of pH 5.6 is it is a more acidic in comparison to milk. So the question number 12 is the milkman, एक milkman है जो ऐड कर रहा है very few amount of baking soda तो fresh milk थोड़ा सा alkaline हो जाता है, क्योंकि because let's done addition of baking soda
the addition of baking soda, the formula of baking soda is NaHCO3. It is a metallic carbonate, और जो metallic carbonate होता है which is basic in nature, अगर हम मिल्क में ऐड करते हैं और मिल्क का pH कितना होता है 6, और 6 में 6 जो है एसिडिक होता है, और एसिडिक में हम अगर बेस मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कॉमनली बोलते हैं बेकिंग सोडा, उस बेकिंग सोडा को अगर हम मिल्क में ऐड करते हैं तो मिल्क क्या टर्न हो जाएगा, द मिल्क टर्न इनटू द मिल्क शिफ्ट इनटू मिल्क shift into alkaline. जैसे हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, बेकिंग सोडा इज अ बेसिक इन नेचर, बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम ऐड करते हैं मिल्क में तो मिल्क शिफ्ट इनटू मिल्क चेंज हो जाता है अल्कलाइन फॉर्म में, और व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट दिस मिल्क इनटू कर्ड, अगर हम इस अल्कलाइन मिल्क को टर्न करना चाहते हैं या दही में कन्वर्ट करना चाहते हैं विच टर्न इनटू लैक्टिक एसिड, अब इस अल्कलाइन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना है, लैक्टिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड में हम कन्वर्ट करते हैं। इट टेक मोर टाइम, क्यों मोर टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अल्कलाइन फॉर्म चेंज हो गया है, जैसे मिल्कमैन ने ऐड किया, अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, पीएच मिल्क का पीएच होता है 6 और मिल्कमैन ने क्या ऐड किया, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर, और किसी एसिड में अगर हम कोई बेस मिलाते हैं तो पहले तो न्यूट्रलाइज होगा, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से ये थोड़ा सा अल्कलाइन हो जाता है, तो न्यूट्रलाइज हुआ, फिर अल्कलाइन चेंज हुआ, और इस अल्कलाइन मिल्क को हम अगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर हम इसको एसिड में किसी अल्कलाइन को या किसी नियर अबाउट बेसिक नेचर के सब्सटेंस को, या फिर अगर हम इसको बेसिक नेचर बोले या फिर हम उसको अल्कलाइन बोले, एक ही बात है, इस अल्कलाइन मिल्क को अगर हम लैक्टिक एसिड या कर्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये टेक अ टाइम। इनमें जो बैक्टीरिया वर्क करके क्या बैक्टीरिया एक्शन करते हैं, वर्क करते हैं, वो करने के बाद ये क्या हो जाता है, जो मोर एसिडिक हो जाता है, 6 से थोड़ा सा और बढ़ जाता है इसकी जो एसिडिटी होती है, तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इनको टाइम लगेगा, इट टेक्स मोर टाइम। क्यों टाइम लगेगा, बिकॉज द अल्कलाइन मिल्क, अब ये अल्कलाइन है, बेसिक नेचर का हो गया, तो पहले तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, जो बैक्टीरिया होंगे वो एसिड उतने अमाउंट में एसिड रिलीज करेंगे, तो पहले न्यूट्रलाइज करेंगे बाद फिर टर्न करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें पीएच रेंज की, तो पीएच रेंज अगर यहां से स्टार्ट हो जाता है, द पीएच रेंज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा पीएच रेंज है, दिस इज आवर पीएच रेंज, एंड 8 9 10 11 12 13 and our 14। तो ये अगर यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है, जैसे ही हम अगर ये हमारा मिल्क में अगर जैसे ही हमने बेकिंग सोडा ऐड किया, ये मिल्क यहाँ तक पहुंच गया, इसका पीएच रेंज यहाँ तक पहुंच गया, अब जो हमारा लैक्टिक एसिड बनना है, जो कर्ड बनना है, फिर हमको यहाँ तक लाना है, तो बैक्टीरिया जब एक्शन करते हैं, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया टेक मोर टाइम, क्योंकि अगर ये न्यूट्रलाइज हो गया है, अल्कलाइन हो गया है, तो इस अल्कलाइन को पहले न्यूट्रल करेंगे, और न्यूट्रल करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको एसिड में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एसिडिक एसिड, सो इट टेक मोर टाइम। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में या फिर उसको सील्ड करके क्यों रखते हैं, इसका रीजन क्या है, देखते हैं इसका रीजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 था, अभी 30, क्वेश्चन नंबर 30।
सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को या पीओपी को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, इसका रीजन क्या है। तो पहले तो जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into 2H2 इसको बोलते हैं जिप्सम। दिस इज आवर जिप्सम। अगर जिप्सम को हम हीट करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है, बट वी हीट द gypsum, it converted into, it lost some amount of water molecule, so it become CaSO4 into half H2O। ये हो जाता है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकली कॉल्ड एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, व्हेन द POP कम इन कांटेक्ट विद वाटर, अगर ये क्योंकि इसका एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हुआ है तो अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में अगर हम विद मॉलिक्यूल वाटर का ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, फिर से हमारे जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यही रीजन है कि हम इसको मॉइस्चर से बचाते हैं। तो मॉइस्चर से बचाएंगे तो हमारा पीओपी बचा रहेगा। अगर जैसे ही अगर ये मॉइस्चर कंटेनर हटा देते हैं, अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से हमारे जिप्सम का, क्योंकि हमें यूज करना है पीओपी का हमें यूज करना है। तो पीओपी का यूज करने के लिए इसीलिए हमारा ये रीजन है, इट इज द रीजन बिहाइंड इट। वी शुड यूज वाटर वेपर या मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। हम उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए रखते हैं, जब ये कांटेक्ट में आएगा, when it come in contact with moisture, it converted into, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये तो हमारा पीओपी होता है, यही वजह है कि हम इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, if we contain calcium sulfate, contain POP in moisture proof container, it converted it, otherwise it converted into gypsum। So this is the reason. In this way, student, our answer get completed now, and the next question is, what is the neutralization reaction? Give two example। अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एजेंट जब आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये when the strong acid or strong base and strong acid and strong base are combined each other, HCl plus NaOH give NaCl plus H2O, and HNO3 plus NaOH give NaNO3 give NaNO3 and H2O. So this is our neutralization reaction। क्या कॉमन है, एक एसिड है, दूसरा बेस है, और तीसरा क्या मिला, सॉल्ट, लास्ट में वाटर। सो
after the completing of the neutralization reaction, we have found salt and water. So example is hydrochloric acid react with sodium hydroxide and give sodium chloride and water. When the nitric acid react with sodium hydroxide, it will give sodium nitrate and water. Now the next, give two important uses of washing soda and baking soda. तो बेकिंग सोडा अभी डिस्कस हुआ है कि बेकिंग सोडा बाय नेचर इज बेस. तो अगर बेकिंग सोडा, तो मोस्ट यूजफुल थिंग द बेकिंग सोडा इज, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, इट इज गिव टू एग्जांपल ऑफ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा? वॉशिंग सोडा which is sodium carbonate Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट. वॉशिंग सोडा का यूज बस तो ये है कि जो हमारे घर में, हमारे डोमेस्टिक यूज में तो वॉशिंग पाउडर होता है, उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है. वॉशिंग सोडा यूज फॉर cleaning agent and domestic use, and it also used in a paper industry and formation manufacturing of glass. तो इधर क्या यूज होता है? क्लीनिंग एजेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज. दूसरा क्या है? बेकिंग सोडा. It is a NaHCO3, sodium hydrogen carbonate, and it is used as antacid, special antacid. Antacid, which when we are suffering from hyperacidity into our stomach, when we take the baking soda, we relieve from irritation and pain, and it is also used in crispiness of food. हम फूड को क्रिस्पीनेस बनाने में यूज करते हैं. एंटासिड के थ्रू यूज करते हैं बेकिंग सोडा को, और क्रिस्पी बनाने में, क्रिस्पी किसी भी फूड आइटम्स को हम क्रिस्पीनेस बनाने में यूज करते हैं फॉर द crispiness and antacid. So our chapter number 2 NCERT